Welcome back to Quick Zenify. It's been a long time, but this is the right time for us to come live and talk to you guys every single day. We are in the playoff stage in the Indian Premier League of season 18-2025. The qualifier one is all set. Top two teams of this particular season, both of them looking solid on paper. One end, you have Punjab Kings, who have been winning nine out of those encounters and one ending in a no result on the same spot. They are facing Royal Challengers Bangalore with the same record as well. Now, to talk more about the facts, figures, numbers, and what can we expect from this high voltage match where Punjab Kings qualified for the playoffs after 11 long years. With that being said, I have towards my life left, I have Mr. Nagraj, aka Nags, and in the bottom, I have Roman Bhai, who is a huge Gujarat fan as well, along with the level 1 certified BCCI umpire as well. Now, with that being said, let's welcome both of you gentlemen. First of all, it's been a long gap. So, welcome, both of you. Thank you, Rajbhat. Thank you, guys. It's a pleasure. Okay. So first, I'll come to you, next by. What are you expecting from Punjab Kings at this point of time? It will be a high voltage match for sure normally. As we have seen, Punjab Kings is playing in a unit with normally somewhere the new captain coming in. I mean, a captain who has led Delhi, who has led Kolkata. I mean, last year as we have seen, Shreyas Iyer representing Kolkata, and he had taken them to the final. And this time also, Shreyas Iyer is a man who is normally, leading Punjab, and somewhere there is a hope that might come to the final. So somewhere, let's see. There are high hopes with Punjab as a unit. So somewhere, the match would be tough today. Okay, so to talk about the top order of Punjab Kings, Priyansh Arya, what art talent he has proven out at this point of time. And when Punjab Kings, let's talk about from the auction point of view and how exactly they reached the playoffs as well. So when they came into the auction, they brought in only two players. They retained only Prabhu Simran Singh and Shashank Singh, two informed players right now in this current season. And next, later on, they have actually brought in the captain. They spent 26.75 crores for Shreyas Iyer. And apart from that, they have brought a true talent instead of going for a big names, and all thanks to the coach Ricky Ponting. So overall team combination, if you look at the team combination, like the top order, Priyansh Arya, Prabhu Simran Singh, Josh English, that's one of the superb buy, I need to tell you. Okay, so the top three order. Okay, so what are you expecting from them today, next by? Actually, somewhere saying the top three are those who who is giving. The major question is coming from there. Sometimes it is seen that Priyansh Arya. Is not going to that extent. He goes out very soon. But after that, Prabh Singh and Josh English, the way we have seen them in the last couple of matches, they are going brilliantly. And after that, Captain. we have Shreyas Iyer, yeah, the captain to lead from the front. So somewhere the top four, they if they go, they can go brutally. Exactly. On the other hand, you have Royal Challengers Bangalore. Now I'm coming to you straight up to you, Roman Bhai, asking about the top four for RCB when they have actually retained only three players: Virat Kohli, Rajat Patidar, and Yash Dayal. And many surprising eyebrows were raised when they left Mohammad Siraj, and he has proven out to be a costly for them this particular season. Now, to talk about the batting order for RCB, you have Phil Salt. They brought in Devdutt Padikkal in the number three position. He has played brilliantly, but due to the injury, he has to leave out the camp as well. And then Mayank Agarwal came in as an injury replacement, and he is playing brilliantly. Okay, the top four for RCB.
I think firstly, Rajbhai, I would like to start with the top four what I have predicted. I have qualified for this particular tournament, so it is a good to me, and whatever that I have predicted, it has been proven right. Now coming back to your question, what you have asked about top order for the RCB. See, Rajbhai, this is the only team who have a multiple players to win POTN. So definitely it suggests that it is a brilliant teamwork. The team is not relying so and so individuals, but definitely in a T20 game, there is a significance, high significance of the top order. We have seen the sheer consistency from the Virat Kohli, and we have definitely expected from him, and he is still going in that way. So we cannot say anything or comment about that particular aspect of that top order. We have seen that Phil Salt is definitely providing those blistering starts. Definitely, he was injured for some 1 or 2 matches, but the replacement, what they find, they have also done the similar job. The checkup in a one match and is having a good 50, good outing for him. So, in my opinion, RCB's look definitely settled unit, but still a point to concern for them. Barring Mayank Agrawal is playing at number 3 or 4, Rapa's form. In the starting stages, he was like, in a great touch, and after that particular injury, what he has sustained during the tournament, I feel that it is affecting him, and his form is deep down significantly. So if RCB want to do well in terms of a middle order or top four, the Rapa's role definitely will be crucial. Thanks to that the middle order as well. That whenever the opportunity, Team David Esquin got Kunal in particular some matches, and more importantly, they have a good signs that Jitesh Sharma finishing the game last time. So, in my opinion, RCB is definitely look a decent and a settled batting unit where they have all the players who can play the according to the situations. One more thing that you have mentioned about they have released someone like Mohammad Siraj, but I still feel that after releasing someone like Mohammad Siraj, they have a decent bowling unit so far in this tournament. Throughout the 18 years, we have never seen this kind of a bowling setup for them. They have a good backup options as well. See, we don't have someone like Josh is available. They have brought in one Tushara. So these all are the like for like replacement for the each other. So overall, they are looking really great in terms of backups and the key players. So considering these two things, this is a similar situation with PBKS as well. They have also good replacement players. So it will be definitely a game to watch out for. So many people have not expected that, the PBKS and RCB is the game that we are expecting to be watch out game for us. But I will suggest you this will be the more important. Even I rate this more about for this season that CSK MI clashes. I rate this particular clash to equivalent to those Al Clasico. Exactly. I mean, both the teams never won the IPL trophy in the history of Indian Premier League. Many got surprised, like the way RCB have picked up, and like a couple of days back, like I was also watching one of the videos, and many commentators actually picked up saying like you need to release Jitesh Sharma. He has not contributed so much, and the way he performed, I think he has seen that particular video and taken it very personally, I believe. Okay. So now next up, I'll again come to you next by asking like the middle order of Punjab Kings has been like the only concern what I have seen with the Punjab Kings, like not to be rude, but I just wanted to say like we have not seen much of Shashank Singh. Marcus Stoinis played a brilliant innings on the other day as well. The cameo what he has played and Azmatullah Omarza as well. Now inclusion of Kane Jamieson, what impact he can actually bring in because he has been in the setup for quite some time. After Lucky Ferguson got injured, he came in as an injury replacement for them. He has been playing brilliantly. And the last match also, we have seen the way he has executed his line and length. He might be on a slightly on the expensive side, but he has improved his rhythm as well. So, what do you want to talk about the middle order and the lower middle order for Punjab Kings? Thanks, Mike. Yeah, surely the middle order actually scene is not that tested because I mean the top four are mostly
see. But somewhere we have those kind of players who can play a good cameo whenever needed. I mean, if you say for Shashank Singh, Omar Zai is there. Omar Zai normally he can, I mean, play good. I mean, he can be good with bat, and I mean, he can be good with ball also. As we have seen him taking a good number of wickets as well. And inclusion of Jamieson would be, I mean, some a good in the last match, we haven't seen that. I mean, that good bowling lineup from them. But normally, somewhere he has that. I mean, he's that quality player who can come up and do good at in critical stages. ओके, सो अगर स्टैट्स One की thing बात that I करें, want to या One more thing that I want to add in this, they will definitely going to miss services of someone like Makro Janssen, who has played a key role. He has left this and joined for his duty for the South Africa WTC final. So I still feel that they are missing a very key player in this particular block, but they were decent replacement available. I still feel that Mitch Owen can be the today's game inclusion for that Jamison CrossFit along ओके, with Jamison. हाँ बोलो भाई बोलो। Somewhere I mean, adding to that, actually, somewhere I feel today there would be a comeback of your Chahal as well. And if Chahal is there, normally we'll have a good spin attack as well from Punjab. So which is watchful. I mean, which is what to watch. आगे जाते वक्त रोमिन भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आरसीबी का मिडिल ऑर्डर जितेश शर्मा, कुरनाल पांड्या, टिम डेविड या रोमेरियो शेपर्ड, 10 मैचों से जब आरसीबी ने मैच जीता है, ऑलरेडी वी हैव सीन 10 डिफरेंट प्लेयर्स, आई मीन 9 डिफरेंट प्लेयर्स इन 9 डिफरेंट occasions winning the player of the match awards for आरसीबी। आई थिंक राज भाई, मेरा एक सजेशन ऐसा है कि जैसा आप मिडिल ऑर्डर में देखोगे तो आपको कोई ऐसे हिटर्स नहीं दिखेंगे अपार्ट फ्रॉम टीम डेविड कि जिससे आप एक्सपेक्ट करो कि वो आके बहुत ही अच्छा तरीके से खेल के जाएंगे, या फिर इन अग्रेसिव मैनर। मतलब मोस्टली जब आप वो फेज में आते हो तो वी कैन एक्सपेक्ट आपका स्ट्राइक रेट 200 और अबव होना चाहिए। तो आपको कृणाल पंड्या का नाम देख के नहीं लगेगा कि ये हो सकता है, नीतीश का नाम देख के आपको नहीं लगेगा कि ये हो सकता है। Definitely, someone like Romario Shepherd is it capable, but there will be the dilemma for them to whether go with someone like Nuwan Tushara or with Romario Shepherd. I definitely say that to selecting Nuwan Tushara above Romario Shepherd will be important because they are facing a side who has scored 6 times 200 above 200 runs. So the bowling department definitely need आपको एक अच्छा बॉलिंग अटैक लेके जाना पड़ेगा ये गेम के अंदर, और नुआन तुषारा ने अच्छा ग्लिम्सिंग उसमें दिया है। कमिंग बैक टू दैट मिडिल ऑर्डर, लगता नहीं है बट स्टिल उन्होंने ये जब भी अपॉर्चुनिटीज मिला है, बहुत कम अपॉर्चुनिटीज मिला है उनको, बट जो भी अपॉर्चुनिटीज मिला है उसमें उन्होंने डिसेंट परफॉर्मेंस दिया है। कुणाल ने 2 अच्छे इनिंग्स खेले थे वाइल दे आर चेजिंग, तो वो भी उन्होंने प्रूव करके रखा हुआ है। जीटीएस का तो डेफिनेटली हमने पिछले में देख ही लिया है हमने, और जीटीएस केपेबल भी है। और टीम डेविड का तो मतलब कुछ बात करने जैसा ही नहीं है कि पूरे आईपीएल में टीम डेविड इज द पर्सन जिसने 17 से 20 ओवर के बीच में सबसे ज्यादा सिक्सेस मारे हैं। तीसरी बात, द व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ये फिनिशिंग एबिलिटीज की बात कर रहे हैं, फिनिशिंग में आरसीबी का सबसे अच्छा रन रेट स्कोरिंग है। 17 से 20 ओवर के बीच में वहां पे उन्होंने 12 रन पर ओवर के हिसाब से उन्होंने रन स्कोर किया है। तो यू कैन अज्यूम दैट दे हैव अ गुड, comparatively good middle order compared to other team, and definitely great news they having a team David in their team. तो यस, मिडिल ऑर्डर का कोई इतना मसला मुझे लग नहीं रहा है आज की गेम में। बट अगेन मैं बोलना चाहूंगा कि देखो दोनों टीम एक मतलब ऑलमोस्ट डिकेड के बाद ये जगह पे खेल रही है क्वालिफायर 1 में। तो मतलब ये बहुत लंबा टाइम होता है। दिस इज नॉट अ गेम फॉर दैट स्किल, इट्स अ गेम ऑफ कंट्रोलिंग नाउस, जहाँ पे जो टीम अच्छा अनफोर्स एरर को जो कंट्रोल कर लेगे वो ज्यादातर ये गेम जीत सकती है। अनफोर्स एरर का कंट्रोल जो रहेगा विच विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर। मैं पीच कंडीशन वो सब की बात नहीं कर रहा हूँ। द रीजन इज कि ये पूरे टूर्नामेंट में इन लोगों ने जैसे आरसीबी 7 अवे मैचेस जीत के आया है, तो मतलब वो कंडीशंस का तो कोई रोल है ही नहीं। पीबीकेएस ने हर बार अपना होम चेंज किया है,
तो वो भी अलग अलग वेन्यूज पे जीत के आया है और वो कम्प्रिहेंसिवली जीत के आया है। तो आई डोंट थिंक मच वेटेड टू दैट कंडीशंस, बट यस, PBKS knows because this is their home ground and what are the conditions. But PBKS will be sad as well that RCB has won 7 out of 7 away games. So चाहता है। आई मीन वही लीडरशिप की बात करूँ तो श्रेयस अय्यर इज आई मीन एज वी एज सेड बिफोर, आई मीन जो बंदा दिल्ली और कोलकाता जैसी टीम आई मीन जिनका कहीं भी ये नहीं था, उनको फाइनल्स में लेके आके, तो कहीं ना कहीं हिज लीडरशिप वाज सीन अर्लियर। और अभी भी उसको पता है कि किसके अगेंस्ट किसको लाना है या कौन सा बैट्समैन। कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा कि टीम का कम्युनिकेशन इस तरह से हुआ है, यानी आप कहीं भी आओ या किसी के साथ भी आओ, यू नो कि सामने वाला आई मीन जो है वो कितना तक परफॉर्म कर सकता है। सो यू नीड टू गिव हिम टाइम, आई मीन किसी भी प्रेशर नहीं डालो, आप उनको उनके तरीके से खेलने दो, उनको विदाउट प्रेशर खेलने दो, सो दैट दे कैन कम इन वंडर्स। और यही श्रेयस अय्यर ने किया है। एंड लास्ट आपका जो क्वेश्चन था मैचअप्स का, अगर मैं बोलूं आई मीन इफ टू एड ऑन सिंस आई आस्क्ड यू फॉर अ मिनट, तो वी कैन सी मैचअप फॉर फिल सॉल्ट वर्सेस अर्शदीप सिंह, एक है। Second is Virat Kohli versus Harpreet Brar. I mean, this can be a good matchup क्योंकि Harpreet Brar has dismissed him twice. एंड कहीं ना कहीं आई मीन ब्रार को वो लेके आ सकते हैं व्हेन विराट इज देयर, आई मीन अगर वो लंबे टाइम तक चले तो ब्रार कैन कम। और वहीं फिर कृणाल पांड्या को वर्सेस चहल, तो ये तीन है अगेंस्ट बैंगलोर। एंड अगर आप इसके पंजाब के लिए करो तो नॉर्मली भुवनेश्वर कुमार एंड हेजलवुड आर दी थ्रेट्स। ओके, अगर आरसीबी के पास आए तो रोमिन भाई आपको ये सवाल मैं पूछता हूं। जब पहली बार 2010 में आरसीबी प्लेऑफ्स में पहुंचा है और फाइनल्स में भी पहुंचा है, ओके, उस टाइम पे दो कैप्टन था आरसीबी के लिए। इट वाज अ मैच विच वाज वेरी मच इन देयर हैंड्स। पहले केविन पीटरसन था, उसके बाद अनिल कुंबले आया। अनिल कुंबले जिस तरीके से वो टीम को लीड किया, आर वी सीइंग द सेम काइंड ऑफ रिपीटेशन थिंग्स फॉर आरसीबी दिस सीजन? आई थिंक RCB के लिए ये डेफिनेटली बोल सकते हैं कि स्टार्स वो तरीके से अलाइन हो रहे हैं जहाँ पे जब जब उनको सक्सेस मिला था तब भी ये टाइप का पैटर्न चल रहा था और अभी भी ये टाइप का पैटर्न चल रहा है। दूसरा कि वो टाइम पे जब फॉर्म था RCB के प्लेयर्स का, डेफिनेटली ये सिमिलर वो टाइप का फॉर्म भी है। बट बस एक ही चीज मैं इसमें से लेना चाहूंगा RCB फैंस को खुश करने के लिए कि भी वो मैच जो हाथ में था इस बार वो फिनिश करके वो ट्रॉफी लेके चले जाए। वो वैसा ना हो कि वो मैच हाथ से उनके चले जाए। तो बट आई स्टिल फील दैट कि उनके पास है ना एक बहुत मैच्योर सेटअप है। और ये चीज का बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है दिनेश कार्तिक को कि जैसे हमने पिछले ईयर्स भी देखा है कि RCB ने बहुत सारे चांसेस मिलने के बावजूद भी उसमें उन लोगों ने बहुत सारी गलतियों की वजह से, मैं अगेन बोल रहा हूँ कि अगर आप परसेंटेज निकालोगे IPL में, एक टीम हु हैड मेड हाईएस्ट नंबर ऑफ अनफोर्स एरर, डेफिनेटली टॉप 2 में तो उनका नाम आएगा ही आएगा। तो मेरा यही मानना है कि वो जो अनफोर्स एरर का जो पोर्शन है इस बार बहुत ही कम दिखा वापस। रीजन इस के दूसरा कि विराट कोहली का एक बहुत अलग लेवल का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है इस बार। जनरली प्रीवियसली IPL में हमने ये देखा नहीं है कि जहाँ पे वो इतने इन्वॉल्व होके कि ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो डेफिनेटली समवन लाइक विराट कोहली इज स्टेपिंग अप। तो या कैप्टन को ये एक और कुशन मिलता है। दूसरा ऐसा लग रहा है कि ये टीम बहुत फ्रीडम से खेल रही है, दोनों टीम। बट अब जैसे आप पंजाब की भी बात करें तो पंजाब का एक कल्चर सेट किया है रिकी पॉन्टिंग ने कि जाके फियरलेस क्रिकेट खेलो। वो फियर में गेम खेलने का जरूरत है ही नहीं और वो वर्क कर रहा है। यही चीज जो जिस साल DC क्वालिफाई हुआ था, आप देखना वो सीजन पे भी कि वो लोग एक फियरलेस क्रिकेट खेल के वहां तक पहुंचे थे। तो श्रेयस अय्यर का डेफिनेटली एक पैटर्न है। इस बार रजत पाटीदार, जितेश शर्मा क्यूमुलेटिवली लीडरशिप कर रहे हैं, ओवरऑल सपोर्टेड बाय विराट कोहली एंड DK। तो ये सारी चीजें उनके लिए अच्छे तरीके से वर्क करिए। होपफुली अब हार्डली उनको शायद 2 मैच खेलने पड़े, अच्छा है अगर 2 ही खेले तो, और 3 मैच खेलने हैं। तो इट इज द समथिंग कि भाई ये प्रोबेबिलिटी है राज भाई, मतलब मैंने पहले इसके लिए क्लेरिफाई किया था मतलब कि भाई 2 ही खेलने पड़े। मेरा अंदर का जो हाँ फैन है वो हाँ, बाहर आता है, लाइक 3 मैच बोला तो हम लोग का अंदर का फैन जो रहता है ना वो जगता है, भाई ऐसा नहीं हो सकता है। वो बट जगेगा। बट भाई वो प्रोबेबिलिटीज है कि अभी जो रिमाइंडर ऑफ गेम्स है
वहां पे एटलीस्ट बहुत लंबे टाइम तक, तो लॉन्जिटिविटी की बात कर रहे हैं अपने, वो बहुत लंबा नहीं है। उनने उनको ये प्रोसेस सिर्फ अपकमिंग मोर प्रोबेबली दो के लिए ही करे, आई विल बी द डेफिनेटली हैप्पियर पर्सन। बट अगर शायद वो जहाँ पे जाना पड़े 3 गेम के लिए भी, तो ये चीज को कंटिन्यू रखे, कल्चर को कंटिन्यू रखे। एंड डेफिनेटली अल्टीमेटली द पीपल हु आर वेटिंग सिंस huge 18 years. 18 years is not a short span of a time. They will celebrate this time at 3rd June. तो ये हो सकता है, चांसेस भी है, प्रोबेबिलिटीज भी है, प्रोवाइडेड ये 3 मैच को वो कैसे खेल लेते हैं। एंड इट सीम्स कॉन्फिडेंस अ डिसेंट यूनिट इट लुक लाइक, तो हो सकता है इस बार। मैं मतलब मैं आपका जो अंदर का जो फील है, मैं अगर लाइक इफ आई वांट टू ब्रेक इट आउट और इफ आई वांट टू रीड बिटवीन द लाइंस, अभी मैच हार जाओ आप पंजाब किंग्स के साथ नेक्स्ट क्वालिफाई टू खेलो, क्वालिफाई टू शायद जीटी के साथ ही खेलो, जीटी को हराओ, और उसके साथ साथ फाइनल में आके पंजाब को हराओ, और जो बचा था उसको कंप्लीट करके निकल जाओ बोल के आप बोल रहे हैं। आई कैन रीड बिटवीन योर अभी लाइंस। मेरा ऐसा मानना नहीं है कभी भी, क्योंकि देखो अगर आज क्वालिफायर में मतलब टॉप 2 पोजीशन पे जब आप क्वालिफाई करते हो ना, तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये नहीं है कि आप हार जाओगे तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर आप जीतते हो तो सीधा फिनाले में पहुंचते हो। दो एडवांटेजेस है। एक तो फिनाले में पहुंच गए तो कोई प्रेशर नहीं है जो क्वालिफायर 2 में लगेगा आप पे। दूसरी बात कि यू हैव अ मोर टाइम, वो दूसरी टीमों को जो टाइम मिलेगा उससे ज्यादा आपको टाइम मिलेगा प्रिपरेशंस करने के लिए। तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से हेल्प कर पा रहा है, और ये पूरे हिस्ट्री रही है कि जो भाई क्वालिफायर 1 जीता है वो नंबर ऑफ टाइटल भी ज्यादा जीता है। तो दिस इज द रीजन कि भाई ये सारी चीजें क्रिकेट में ना बहुत मायने रखती है। द टाइम पीरियड, मेंटल स्टेट, आप आपकी साइकोलॉजी समझ लो कि भाई आप एक जीत के सीधा फाइनल में गए हो और आप एक और मैच खेल के फाइनल में आते हो, तो इट विल बी समथिंग, वो डिफरेंट थोड़ा बहुत क्रिएट करता है। तो आई डोंट लाइक इन दैट वे कि दोनों टीम नहीं करना चाहेगी, मतलब समझो द प्लेस इन अ फाइनल इज द हाई स्टेक रादर देन वी आर गेटिंग अनदर अपॉर्चुनिटी। तो कोई वो सोच के नहीं जाएगा कि साला यार आज नहीं हुआ तो वो क्वालिफायर 2 में कर लेंगे। रीजन इज क्वालिफायर 2 में नहीं हुआ तो आप बाहर निकल सकते हो, तो वहां पे लेके ही मत जाओ। तो दैट इज माई पॉइंट, एंड आरसीबी डेफिनेटली विल डू दिस। आरसीबी के पास कैपेबिलिटीज है। मोर इम्पोर्टेंटली मैं सही बोल रहा हूँ कि जो प्लेऑफ्स के मुकाबले मुल्लानपुर शिफ्ट हो गए ना, वो आरसीबी को डेफिनेटली हेल्प करेंगे इन टर्म्स ऑफ कंडीशंस। क्योंकि जनरली हमने देखा है मुल्लानपुर का जो पिच का बिहेवियर है वो ऑलमोस्ट सिमिलर टू दिस चिन्ना स्वामी। इतना नहीं बोल सकते, देखो चिन्ना स्वामी लोग पहले बोलते थे कि इट्स अ बेल्टर ऑफ अ पिच, भाई वो नहीं है अभी। वो बेल्टर ऑफ द पिच शिफ्ट हो गए, हैदराबाद पे, अहमदाबाद पे, जयपुर पे, वो सारे शिफ्ट हो चुके हैं। अभी तो बेंगलुरु में अच्छे गेम्स हो रहे हैं, 170 180 वाले गेम हो रहे हैं, एंड मुल्लानपुर इज द गुड वेन्यू फॉर देम। अगर उनको ये वहां से निकलना है तो वहां से लेके सीधा आ जाओ 3 जून को। ओके, अगर की प्लेयर्स की बात करना है तो पंजाब किंग्स के बारे में लाइक आपका दो की प्लेयर्स कौन हो सकता है नेक्स्ट भाई? नेक्स्ट भाई। अच्छा, पंजाब किंग्स से फॉर मी इट वुड बी जॉस इंग्लिश, एक तो वो रहेंगे, एंड सेकंड वुड बी ब्रार, हरप्रीत ब्रार। आई नो वाई हरप्रीत बरार, मैं समझ गया। हम्म। एंड टू ऐड ऑन और एक चीज ऐड ऑन करना है, आई मीन जो रोमिन भाई बोल रहे थे, एक्चुअली अगर देखा जाए तो एक ही मैच खेला गया है मुल्लानपुर में, दोनों के बीच, दोनों टीम के बीच में। और जो मैच, एक मैच खेला था उसमें आरसीबी जीती है, जो आई मीन जो लास्ट हुआ था। तो कहीं ना कहीं आरसीबी के पास एडवांटेज तो है, बट लेट्स सी क्या होता है मैच में। मैच तो आई मीन होगा, अच्छा खासा होने वाला मैच। ओके, नेक्स्ट भाई, सॉरी नेक्स्ट भाई रोमिन भाई, दो की प्लेयर्स आरसीबी के साथ। भाई मैं बिलीव करता हूँ कि भुवनेश्वर कुमार इज हैविंग अ गुड आउटिंग। एंड फ्रॉम द बैटिंग डिपार्टमेंट आई फील दैट फिल सॉल्ट इज हैविंग अ गुड टाइम। देखो विराट कोहली तो चलता ही है तो वो अपना काम करेगा, जॉस चलता है वो तो जॉस काम करेगा ही करेगा। तो मैं उनको वो नहीं देख रहा हूँ, बट आई स्टिल फील दैट भुवनेश्वर कुमार विल बी द गेम चेंजर इन टुनाइट्स गेम along with फिल सॉल्ट। दे आर द गेम चेंजर, मतलब गेम यहाँ से चेंज होगा, ये दोनों के कंट्रीब्यूशन से होने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं मुझे। और सरप्राइजिंगली भाई एक और पॉइंट जहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं कर रहा है, बट आई डोंट नो
परफॉर्मेंस ऑफ यश दयाल भाई। मतलब वो एक शैडो के अंदर आ चुका है अभी कि आरसीबी जीत रहा है तो पीपल आर नॉट टॉकिंग मच अबाउट हिज परफॉर्मेंसेस अपार्ट फ्रॉम ओनली वन मैच की जो उसने सीएसके के सामने डिफेंड करके दिया था आपने। वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मोजो नहीं दिख रहा है यश दयाल का। तो होपफुली वो बाकी के 3 मैच में क्रूशल रोल प्ले करे, क्योंकि अगर 3 मैच खेलने पड़े तो 2 मैच अहमदाबाद में हो गए, तो वो जीटी के लिए वहां पे खेल चुके हैं, तो वो उसका थोड़ा यूज करके उसको आरसीबी को कंट्रीब्यूट कर पाए। उसको खाली एक ही। है जहाँ पे आरसीबी का एक बार देखो वो बहुत ज्यादा तक डिस्कशन नहीं हुआ वाली जगह है कि यश दयाल ने कोई कंसिस्टेंटली विकेट्स नहीं दिए उनको। दूसरी बात कि जब भी उनके ओवर्स रहे तब सामने वालों ने रन स्कोर किए और वहां से गेम हुआ है अल्टीमेटली। बाकी अदर्स बॉलर ने अच्छा किया। आई एम स्टिल फीलिंग दैट ही इज केपेबल इनफ। यस दयाल हैज पजेस अ गुड टैलेंट वो प्रेशर को हैंडल करके कर सकता है। दूसरा कि वो जो जगह पे ओवर डालता है वो ओवर्स बहुत क्रूशल्स होते हैं, लाइक पावर प्ले का लास्ट ओवर डालना, सेकंड लास्ट डालना। तो इट कैन बी आइदर साइड, आप रन खा जाओगे या फिर विकेट ले जाओगे। डेथ में बॉलिंग कर रहा है तो इट इज बाउंड टू हैपन। बट आई स्टिल फील दैट द विकेट टेकिंग एबिलिटी ऑफ हिम इज समवेयर वेयर थोड़ा ड्राई अप हुआ है वहां पे। और दूसरा एक पॉइंट है सुयन शर्मा का। जैसे अपने ने आरसीबी की वीकनेस पे बात नहीं की है, जैसे जनरली स्ट्रेंथ पे ही बात की है। तो वो लोग है ना उसके स्पिनर से विकेट नहीं ले पा रहे हैं, जैसे कि कृणाल का भी कोई इतना विकेट टेकिंग परफॉर्मेंसेस नहीं हुआ है। तो आई स्टिल फील दैट ये जो नॉकआउट स्टेजेस है वहां पे गेम विकेट से ही बनता है। आपको विकेट्स डेफिनेटली लेने पड़ेंगे, सामने वाली टीम पे प्रेशर डालना पड़ेगा। फास्टर्स अपना काम कर देंगे, बाद में ये योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक विकेट विथ रिस्ट्रिक्टिंग द फ्लो ऑफ द रन। तो ये दोनों चीज अगर करते हैं तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल टू देम। एग्जैक्टली exactly. अच्छा, ठीक है। सो लास्ट एक बार प्रिडिक्शंस ले लेते हैं एंड देन लाइक इट्स टाइम फॉर अस टू वाइंड अप दिस पर्टिकुलर शो। ठीक है, नेक्स्ट भाई, कौन जीत सकता है यहाँ से? Okay. Normally, I mean, as per the pitch, जो chase करेगा that I mean, that chase करेगा मेरे को वो win डिप्लोमेटिक करने आंसर वाला है नहीं चाहिए मैच। भाई, प्रिडिक्शन हाँ या ना। आज का अरे मैच में हाँ या ना, अरे आरसीबी या पंजाब उसी किंग्स? पे उसी पे आ रहा है। वैसे देखा जाए तो जो टीम चेस करेगा वो विन करेगा, बट समवेयर आई वुड लाइक पंजाब टू विन टुडे। मेरे हिसाब से पंजाब आज विन होना वो राजस्थान का दुख है अभी भी भाई, आईपीएल है। चाहिए ना। ऐसा नहीं। राजस्थान का नहीं सी जो टीम अच्छा खेल रहा है, आई मीन बोथ द टीम्स आर प्लेइंग, बट समवेयर आई एम फेवरिंग पंजाब। रोमिन भाई के बारे में पूछो मत, नहीं, बिकॉज आई थिंक ही हैज स्पोकन a lot and lot of about RCB and he is saying like today let's RCB win, we have already seen। फिर भी मैं भाई आरसी आरसीबी आप जो बोल रहे हो बराबर प्रिडिक्शन के लिए, मैं ओके। डेफिनेटली आज चाहता हूँ दिल से। और दूसरा भी मैं एक और भी बात चाहता हूँ कि द लव ऑफ आरसीबी फैंस टुवर्ड्स मी, कि भाई मैं आरसीबी बुला। तो मतलब ऐसा नहीं है, बट लॉजिकली मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आरसीबी हैज अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू विन टू नाइट्स की, स्पेशली। मैंने पहले भी बोला था कि ये कंडीशंस की गेम नहीं होने वाली भाई, ये 110% इट विल बी द गेम ऑफ नर्व्स। और उनके पास एक अच्छा नर्व्स कंट्रोलर है, विराट कोहली एंड डीके। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ श्रेयस के पास नहीं है और वो नहीं कर सकता है, बट आई स्टिल फील दैट इट विल बी द गेम ऑफ मार्जिन। एंड या you guys are going to reach in final directly। हम लोग नहीं भाई, अर्जुन, मैं जब भी पॉडकास्ट में आता आरसीबी हूँ। गाइस यार, हाँ, आरसीबी। आरसीबी गाइस मतलब सॉरी। ठीक है। मतलब भाई अब ऐसा कोई गलत नहीं है, देखो ये अंदर का एक आरसीबी फैन होना और वो एक्सेप्ट करना कोई वो ऐसा गलत बात है नहीं। मैं बट या स्टिल मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ भाई, पॉडकास्ट में डायरेक्टली बोल देता हूँ, हमेशा मैं बोल देता हूँ, इवन दो आई एम अ स्पोर्ट्स कमेंटेटर एंड व्हाट होस्ट ऑल्सो। मेरा मानना ये है कि लाइक जब भी आप आरसीबी के बारे में बोलते हो, नहीं तो लाइक सी आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ frustration on any other franchisee as well, but when it comes to the fan battles and the fan wars and all those things, whatever the season which is gone, they're all bygones। Okay, we have spoken a lot about CSK as well। जो लोग नहीं देखा है वो सीएस के बारे में भी आप देख सकते हैं कि हम लोग क्या बात किया है बोल के। We told a lot of transitions and lot of players have to be removed, and that's exactly what CSK management have done। They brought in Urvi Patel, they brought in lots of young talents, Devil Brevis when it is much required। Now
सीएसके अगर आगे सीजन्स में उन लोग का भी अच्छा रहता है, सो ऐसा ही हम लोग बात किया था बाकी सब फ्रेंचाइजी के बारे में भी। सो ठीक है, we will talk about all those things. Let's focus on today's match. And if you ask me, I'm looking RCB to have that one slight edge and go to the finals for 3rd of June. Hopefully that will be there. Because अगर मेरे के बारे में पूछा तो लाइक ऑल राउंड परफॉर्मेंस के बारे में देखा तो इट्स ओनली दैट आरसीबी एंड बोथ पंजाब किंग्स बोथ आर एक्चुअली परफॉर्मिंग as a unit rather than an individual team. What Punjab Kings have not done in the last 11 years. This year they have done it one step ahead, saying like they're keeping their past behind and making sure that they are reaching where exactly it has to be reached. So that's all we had, guys, from our today's podcast. Please do like, share, and also do follow us on all our contents as well. Until next time, take care and bye bye.